Hello. Yes, hi. So we are live on Facebook, Dipal Bain. So first of all, welcome to this talk. And ये जो talk है मन की सोच, ये जो idea आपने दिया, the idea that we got, I think it is a very very relevant time. One brief background of Dipal Bain is that she is a counseling psychologist. She is also an NLP practitioner. बहुत सारे लोगों को उन्होंने help किया है. Mental health healer. You will also call her as an arts-based therapist. She's helped a lot of students, housewife, entrepreneurs come out of stress, depression. और मैं आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करूंगा स्पेशली बाय सेइंग कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और वरी है, पैंडेमिक टाइम्स है, टफ टाइम्स है. एंड लेट मी स्टार्ट दिस सेशन बाय सेइंग कि मैं खुद स्ट्रेस्ड हूँ, मैं खुद वरीड हूँ. आई हैव सम मेंटल वरी एंजाइटी इश्यूज अबाउट पूरा देश का क्या होगा, एमएसएमई का क्या होगा, समाज का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा. सो विद दिस दीपल बेन वेलकम. और फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं ऑडियंस से भी, वी आर मॉनिटरिंग आवर फेसबुक पेज, तो हम लोग लाइव उसे देखेंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लेंगे लाइव. फर्स्ट क्वेश्चन टू दीपल बेन इज, आपको क्या लगता है करंट माहौल में अनसर्टेनिटी है, आपके पास क्या क्या फीलर्स आ रहे हैं? सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस टॉपिक? First and foremost, thank you, Bashesh Bhai, for such a warm welcome and inviting me here for this event. Sure. Another thing, Bashesh Bhai, let me tell you something. This is not a Gyan session where we, like another webinar or seminar, what we attend. I would just like the audience to grab a pen and a paper. This is very hands-on session where we'll be sharing some techniques and tips which they can implement on a daily life, So I would just ask them to grab a pen or a paper or somewhere where they can just write down. Sure. And just one thing, when ये वीडियो फेसबुक पे ही रहेगा, a lot of people can see it later. तो ये एक्सरसाइज वो लोग कभी भी कर सकते हैं whenever they see it. Okay, that's yeah. So as you said, in today's scenario, there's a lot of feeling of helplessness because people want to do a lot of things, but due to lockdown, due to certain constraints, they're not being able to do that. Sure. So this helplessness actually leads to frustration, anxiety, as you said, anger. Then it develops to depression, fear, suicidal ideations or something like that, The main, as you mentioned, you want to do a lot for MSCs and all these people. Similarly, there are people affected like students, young kids, housewives are also affected with it. Mothers, working mothers, especially, they have to be do multitasking. Elder people where they cannot go out, they're just stuck in their own zone or in their own room, house kind of a thing. Businessmen are affected, working professionals. So this scenario is really may keep taking people towards the negative emotions, what I can say. Yes. We are getting a lot of questions. I mean, Jiten Gala, Philip Shah, Daftar, Vinod Furia. One question is, and मैं ये start करना चाहता हूँ कि this is the right time to talk and open up. अभी I think लोग usually एक mentality रहता है Indian society में कि मर्द को दर्द नहीं होता, हम हमारे problems खुद लड़ लेंगे, हमें share करने की जरूरत नहीं. But I think this is the right time to open up and say कि I am worried. और ये बोलना बहुत जरूरी है. तो दीपल बेन, व्हाट टिप्स वुड यू वांट टू गिव टू स्पेशली फैमिलीज जो ये वीडियो देखेंगे, द मेन, द बिजनेसमैन जो जॉब कर रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी कर रहे हैं, कि हाउ कैन दे ओपन अप एंड हाउ कैन दे शेयर विद देयर फैमिलीज? कुछ टिप्स इसके बारे में. Yeah. So as you correctly said, in our Indian culture, it is you can say a taboo or something where you can not express yourself, especially your negative side, where you are vulnerable or where you are facing challenges. So इसके लिए there are a lot of things where as a family you can sit together and do it. I'll share few tips, but directly going towards sharing your vulnerable part or the negative emotion, it's better to build something background and then go ahead with the sharing of your negatives or the worriness, stress that you are feeling. So first and foremost, it would be like family fun time or family entertainment time where you can all sit together as a family. It can be kids, elders, everyone, each and every member of your family, and do something which is of common interest. Watch a series,
a movie, play some board games, some indoor games as well, like passing the parcel, which we used to play when we were young. Chinese whisper, which will create humor, which will have like light moments. Anxiety, stress, whatever is there, that can be really lighten up, and the bonding is created. Secondly, second point or technique, I would say, have a family intellectual time or intellectual knowledgeable discussions, which can be planned as well as impromptu, कि तमे initially आप सब पहले decide कर लो कि ये time पे हम we'll sit together and we'll have some intellectual discussion on particular topic. आप कोई भी general टॉपिक्स करंट सिनेरियो लाइक आईपीएल चल रहे हैं तो क्रिकेट का टॉपिक ले लो आप या कोई भी ले लो, एंड देन लेट everyone google up and then come and discuss, or maybe you can have a impromptu thing where people can just come and give their opinions, and it's a healthy good discussion that can be a good family bonding to make a base basically and connect with each other. Secondly, sharing personal sharing, what's happening in within our life, with my life, or with if there is a student, so how the studies are going, if he or she is planning to go abroad, तो वहां पे अभी क्या उसको दिक्कत आ रही है, how he is not being able to make decisions, where he is consulting a coach or a mentor, so what is the stage, let him discuss. Similarly, a father or a male member can discuss business scenarios, industry के क्या future perspectives है, what's happening. Being a mother, she can discuss how she's facing a challenge with household chores, maids coming, not coming, how things are going, market में क्या चल रहा है, prices. So this can be something where we again everyone is involved and a good family open topic kind of a thing. Secondly, there is one more thing which I would say, point out ki, let it be a very open discussion where people can give their opinions, suggestions, as in if you are sharing some concern or somewhere you are not too sure, confused between two choices, let people come up with their suggestions, opinions. It's a warm welcome. And working as a team for anything that needs to be resolved can also work in this way. That will release the stress of everyone. It can be child, mother, parents, grandparents, anyone. That it can be really a stress reliever. Sure. So special mention for Savita Sawant, good evening, and Amit Dula. They have given comments, questions, and also Kijal Shah. मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत सारे एक ही पॉइंट में टिप्स दिए, तो देयर इज समथिंग फॉर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, हम उसको बाद में लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा टिप आपने दिया था इस क्वालिटी फैमिली टाइम। शेयरिंग करने के पहले वी नीड टू हैव अ बैकग्राउंड एंड हैव अ क्वालिटी फैमिली टाइम। एंड ये लॉकडाउन जो लास्ट ईयर से एक साल जो बिट्स एंड पीसेस में लॉकडाउन था, यू हैव टू लव योर फैमिली। आपके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, whether you like it or not, you are locked in a room, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हो या बंगलो, ultimately you are locked with your family and you need to love your family. जो इंसान अपने फैमिली से प्यार करता है उसके लिए ये टाइम बहुत सुंदर टाइम था। ऑफकोर्स चैलेंजेस है, लेकिन जिसमें इतने क्लैश थे वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वही चेहरा देखना है। मैं एक थोड़ा दीपल बेन आपके परमिशन से शेयर करना चाहूंगा, इस पीपल डोंट शेयर, एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट हम घड़ी घड़ी बाद में भी लाएंगे, इस गुड कम्युनिकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जिस फैमिली में ये दो है, दे हैव बीन एबल टू गो थ्रू दिस पीरियड, टफ टाइम्स आए हैं, इलनेस आए हैं, बिजनेस में लॉस आए, बट दे हैव बीन एबल टू गो थ्रू दिस बिजनेस। में दो केस स्टडीज दूंगा। वन आर टिपिकली फार्मर्स, खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अपना मान सम्मान इज्जत बहुत कुछ होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू टेल कि मैं कर्जे में हूँ, मैंने लॉस किया है। और जब बहुत ज्यादा डेट और प्रेशर बढ़ जाता है, मनी लेंडर का प्रेशर बढ़ जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्मर्स भाई पास्ट में उन्होंने अपनी लाइफ दी है, सुसाइड कमिट किया है। और सरप्राइजिंगली और वरिंगली यही ट्रेंड अब हम और कम्युनिटी सेक्शंस में भी देख रहे हैं कि इंसान का लाइफस्टाइल वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो अपने वाइफ को, मदर को, अपने बच्चे को फेस नहीं कर सकता। एक बाजू लोन है, एक बाजू बिजनेस लॉस है, एंड देन अल्टीमेटली या तो उसको स्ट्रेस के कारण उसका हेल्थ खराब होता है, हार्ट अटैक आता है, या तो कोई ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं। सो लेट अस टॉक ऑन दिस वन थिंग दीपल बेन, और मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, फैमिली शेयरिंग। जैसे आपने कहा था, हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया था बिटवीन 500 मेंबर्स जो हमारे राइस कोर्स की है, उनको एक ही क्वेश्चन पूछा था, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे अटेंशन ऑन दिस, कि एक ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर जो मेन आदमी है
आई होप कि ये मेन आदमी टर्म रॉन्ग हो जाए, इन द फ्यूचर एवरीवन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, बट जो मेन अर्निंग मेंबर है, द मेल ऑफ द होम, अगर उसको हमने किडनैप कर लिया 2 महीने के लिए और उसका मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, या खुदा ना खास्ता कभी वो बीमार हो गया, कोमा में चला गया, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, विल द लेडी ऑफ द हाउस बी एबल टू रन द होम एंड द बिजनेस? क्या उसे पता है टर्म प्लान किधर है? क्या उसे पता है हेल्थ इंश्योरेंस किधर है? बिजनेस में लोन्स किधर है? किससे पैसा लेना है? एंड अनफॉर्चुनेटली मोर देन 85% वीमेन हैड नो आइडिया। वो बोलते हैं कि हमको ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं करते। तो दीपल बेन, आई वांट लेट्स टॉक ऑन दिस स्पेसिफिक पॉइंट, आप एक एक्सपर्ट हो, हाउ कैन वी स्टार्ट दिस कल्चर कि लोग अपने फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली अबाउट फाइनेंसेस, स्पेशली अबाउट चैलेंजेस, और जितना ओपन करेंगे उतना सपोर्ट मिलेगा तो वो फेस कर पाएंगे। तो दीपल बेन, अबाउट दिस पॉइंट प्लीज। यस, एज यू सेड आशीष भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे the main earning member, I would say, or the main support system of the family, it can be a male or female, but as you rightly said कि major is male member आज की तारीख में, तो वो खुद इतने responsible हैं and they feel the entire burden कि they never share their entire scenario, work scenario within the family. तो वो sharing जो है, that is very important in this especially in this world today. So how to go, जैसे मैंने बताया कि first is like make a base where everyone is interactive in every aspects, not only first जो fun aspect है जहाँ पे easily connections build हो जाते हैं, and then definitely ये जो current market scenario है, current industry में जो जहाँ पे है, वो sharing करना with each and every family member is very very important. But again, we have to be very mindful with the age and the health of the family member. We cannot share everything. यानी हम सारी चीजें बच्चों के सामने भी नहीं रख सकते वो, because they are not mentally developed to take that intensity of the scenario, intensity of the problem. Similarly goes with the really elderly people who, if they have some health issues, तो ये दो जो aspect ध्यान में रखते हुए, लेकिन definitely उनको भी according to their age certain information हम share करें, वो better, वो सही चीज है. तो मैं एक टाइप ऑफ टेक्निक Bashish bhai, which usually even I do and I share with my people around me, I'll just share here. कि first whatever plan we make, यानी जो भी हमें sharing करनी है as a main family member of the main member of the family, I would make sure कि we plan a time, specific time, and the message is conveyed कि we will plan a meet where I want to discuss something with all of you. तो वो we will respect their time. यानी इससे क्या होगा कि जो member भी है वो भी open mind से आए, and again their time is respected, there is no disturbance. तो वो एक एंगल से अगर हम जाके प्लान करते हैं मीट सर्टेन डे टाइम वगैरह, तो इट रियली हेल्प्स दैट वे. सेकेंडली वी मेक अ एजेंडा ऑफ हाउ टू डिस्कस, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट. जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है मैं क्यों शेयर करूं, यहाँ पे उनको क्या समझ में आएगा इंडस्ट्री के बारे में, कैसे, यानी हाउ मच दे नो, दे आर वेरी मच अ स्टूडेंट और वेरी मच अ हाउस वाइफ और इनटू हर डिफरेंट इंडस्ट्री वेयर शी इज वर्किंग, तो हाउ मच वुड दैट रिलेट. नहीं, but definitely sharing will help us, like will help me to get the support and understanding. और कभी कभी बच्चों से, या आपने नोटिस किया होगा कि किसी थर्ड मेंबर से थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो हमें कोई आइडियाज ओपन अप हो जाती है, विच इज वेरी इफेक्टिव. सो ऐसे हम बैठ के डिस्कशन करें, और विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. लाइक मैं जब भी सिटिंग फॉर द एजेंडा, आई एम वेरी श्योर कि प्लानिंग में मैं क्या बात करने वाली हूँ, हाउ इज द करंट सिनेरियो, very realistic with numbers, what would be the future, how it is going to be, what is my prediction for the future as per today's scenario. See, things can change, so वो सब लेके हम बात करें तो it would definitely help. Sure. So I think beautiful insight. And Dipal, in our business also, हम लोग कभी कभी फैमिली कंसल्टिंग भी करते हैं. जो फैमिली बिजनेसेस है, बड़े बड़े फैमिली होम्स है, उनका कंसल्टिंग करते हैं. और वहाँ पे एक टेक्निक हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कि वी डेडिकेट 1 डे इन अ ईयर. समझो वो दिवाली के आसपास का कोई दिन हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, या 2 जनवरी हो गया, कोई भी एक दिन आप डेडिकेट करो वेर यू सिट डाउन एंड यू शेयर योर फाइनेंसेस, एंड ओपनली आप शेयर करो कि लास्ट ईयर कैसा था, नेक्स्ट ईयर कैसा था. ये करने से एक डिसिप्लिन हो जाएगा. जैसे हम हमारे खुद के घर में अराउंड माय बर्थडे
समझो अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास हम लोग सब हमारा हेल्थ चेकअप कराते हैं। ये एक फैंटास्टिक आइडिया कि हेल्थ चेकअप तभी एक ही साथ करा लो। हम लोग सब हमारा जो टर्म प्लान है, हेल्थ प्लान है, इंश्योरेंस का है, इन्वेस्टमेंट फाइल है, सब अपडेट करके लेटेस्ट प्रिंट आउट करके गूगल ड्राइव में डाल देते हैं। तो ये करने से एक कम्युनिकेशन होता है, सबको पता चलता है कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया और किसी को कुछ हो गया, एवरीवन इज अपडेटेड। गूगल ड्राइव मोबाइल पे भी है और फिजिकल फाइल भी है। तो आई थिंक ये बहुत फैंटास्टिक पॉइंट है। आई वांट टू एक्नॉलेज प्रतीक जानी, बहुत ही डैशिंग लॉयर है, हु इज विशिंग अस गुड लक। और हमारे पास मॉरिशियस से भी लोग ज्वाइन हुए, लक्ष्मी जयपाल एंड टीम। एंड एक क्वेश्चन है इन जनरल, हाउ डू आई बीट स्ट्रेस? तो मैं थोड़ा पहले मेरा इंसाइट्स दूंगा और फिर आप प्लीज शेयर करना। आई पर्सनली बिलीव स्ट्रेस इज आवर रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसे अगर हम अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते तो स्ट्रेस होता है। जैसे स्टूडेंट्स है, उन्होंने अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया एग्जाम के लिए या कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस आता है। बिजनेसमैन है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो स्ट्रेस आता है। हाउसवाइफ है, अगर उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्ली घर मैनेज कर सके फॉर एग्जाम्पल, या हेल्थ नहीं चल रहा है तो स्ट्रेस आता है। आपके लाइफ में इमरजेंसीज आते और आपने प्लान नहीं किया तो स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट our response to situation। तो उसके लिए there are three things which I have done। I have guided a lot of people, given a lot of suggestions जो बहुत helpful है, and then people bin can add। first thing, and this is my 100% formula, you do this and आपका stress चला जाएगा। आपको मालूम है, एक क्वेश्चन ऑडियंस को, कि जो डेली जो खुद सुसाइडल होते हैं, अगर उनको सुसाइड थॉट्स अगर निकालना है तो द बेस्ट वे फॉर देम इज कि आप उनको हेल्पलाइन पे बिठा दो and ask them to help other people। सो जो 3 पॉइंट्स दीपल बेन में सजेस्ट करूंगा, इस एक फर्स्ट इज कि हैव स्पिरिचुअल पावर इन योर लाइफ। आप मेडिटेट करो, योगा करो, कोई परमात्मा है उसका पावर लो तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। सेकेंड इज कम्युनिकेट, हैव अ सर्कल। वो शायद आपके फैमिली हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आपके मेंटर हो। कम्युनिकेशन की, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे आपको आइडिया आएगा। और थर्ड, और ये सबसे सिंपल चीज है, आज के टाइम पे हम घर बैठे हैं, अगर आपको आपके देश को, समाज को, दुनिया को हेल्प करना है, आप ये मेरे को 1 घंटा दीजिए, 1 आवर। और ये 1 घंटे में 5 मिनट आप दुनिया के लिए प्रार्थना मांगिए कि डियर गॉड, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ, थैंक यू फॉर कीपिंग एवरीवन सेफ, प्लीज गिव देम करेज। एंड बाकी टाइम पे आप 4 जन को, किसी को भी कॉल करो, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड जस्ट आस्क हाउ आर यू। अरे टेंशन मत ले, निकल जाएंगे हम साथ में। जस्ट बाय टॉकिंग टू 4 पीपल एंड सेइंग टेंशन मत ले, निकल जाएंगे। नॉट बाय कमिटिंग कि नहीं मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे पैसा दूंगा, बट जस्ट सेइंग नहीं, टेंशन मत ले, ऊपर वाला साथ है, निकल जाएंगे। अगर हर एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को कॉल करके ऐसे बात करता है, सपोर्ट करता है, एक कनेक्ट होता है, द स्ट्रेस लेवल्स विल रिड्यूस। आपका खुद का भी स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सबको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन जब हम दूसरे का प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं, वो बेचारा ज्यादा प्रॉब्लम है। So these are my takes to a couple of questions। Parul Gadda, Jiten, Latesh are also giving some feedback। बट दीपक बेन आपका क्या है, हाउ डू वी हैंडल स्ट्रेस जनरल लेवल पे? जो अभी का स्ट्रेस है वो स्ट्रेस होता क्यों और उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। Yes, you rightly said, Bashish bhai, कि stress is something our own created, कि हम कोई चीज जब भी हमें होता है, whenever there is some negative emotion हमें आती है, तो if we don't acknowledge then, अगर उसे हम तभी एड्रेस नहीं करते हैं तो वो बिल्ड हो जाता है, वो किधर बैठ जाता है अपने अंदर, एंड देन इट कम्स ऑफ इन सम अदर फॉर्म, in form of a stress, which is a broader term we can say। वो कोई किसी अलग अपने एक्टिविटी में आ जाएगी, किसी के बिहेवियर में इट कम्स आउट, somewhere someone will feel depressed or something। And then 3 techniques what you said, I truly agree। I mean, first one what you said was हमें किसी भी स्पिरिचुअल को अटैच करना है, यानी मेडिटेशन करना है या कॉन्सेंट। सो दैट इज अगेन अ मेडिटेशन कैन बी डन इन वेरी डिफरेंट वे। इट कैन बी डन समवेयर, आई विल शेयर सम टेक्निक्स फॉर दैट, कि मेडिटेशन जो फॉर्मली हम करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों का थॉट्स इतने आते हैं कि वो मेडिटेशन के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो इट्स लाइक बैक टू बेसिक्स, वी कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इन नेचर। आज हम लॉकडाउन के सिनेरियो में वी कांट गो आउट, बट डेफिनेटली इन बालकनी है या स्मॉल विंडो है, where we can stand out and take deep breath, opening our arms wide, or taking this deep fresh air, which will help us to calm down, get focused, gathered। और वो करते समय be gratitude और thankful to what we have right now। आज हमारे पास क्या है, भगवान का दिया हुआ, तो सामने कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो one thing I really
religiously do, Bashish bhai, and I advise, I mean, I would suggest, not an advice, but people to write a gratitude book. Every day, just 3 gratitudes you can write in that page, a new ones preferably, ki what you are thankful today, to anyone it can be. So morning mein you can, one example is like thankful God to God and everyone around because I'm alive and I can say, see this fresh new day, fit, fine, healthy. So this, there can be anything that works, you know. So that helps in releasing our stress. Then there is also a to-do list, which I be happy list, which I usually make, and I have made, and I tell people, list down things which really you like to do, which is your happy moments, your passion. It can be music, reading, it can be talking, as you said, sharing, or watching a movie. 8-10 चीजें तो आराम से बशिश भाई आराम से we can write out करके, and make a list very handy and hang it somewhere where it's easily visible. So when you feel low, जैसे आपने कहा कि suicidal ideations आते हैं, people feel depressed, stress है, तो स्ट्रेस का रिएक्शन कैसे होता है, कोई एकदम आउटबर्स्ट एंड एंगर से या एंजाइटी से हो जाता है, किसी का लो फीलिंग, डिप्रेशन, एंड देन दैट गोज टू अ रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स. So when you come to that kind of a stage, आपको पता चले कि मुझे है, तो let's go and check that to be happy list करके, and whatever randomly attracts you, know, 7 चीजें हैं उसमें से whichever things attracts you that time, just do that for some time. So that will boost your energy, that will make you come out of what we are really facing at that particular moment, because तभी निकलना है वो बहुत जरूरी है हमें. बाद में तो वी कम टू आवर सेंसेस एंड वी नो कि उसकी इंटेंसिटी जब भी कम हो जाती है, लेकिन इनिशियली यस वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. देन देयर इज वन मोर थिंग व्हिच वी मेंशन कि स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड कम्युनिकेट व्हाट यू सेड, कि सबसे बातें करिए, डिस्कस द टॉपिक, बट डिस्कस इन अ पॉजिटिव सेंस. काफी टाइम कैसे होता है कि आज अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप पे सो मेनी कोविड रिलेटेड एंड लॉकडाउन रिलेटेड things are coming up, you know, they are negative stimuli and that is going to come. हम बशिश भाई उसे रोक नहीं सकते. आज कितने व्हाट्सएप आते हैं, कितने लोग फोन पे वही सारी डिस्कशन करते हैं. तो let's plan our day, you know. How I would suggest is plan certain hours a day where you take all these information, specific hours. So today if I plan कि मुझे 2 घंटा पूरा कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई हैव टू स्टे इन दिस करंट वर्ल्ड, तो मुझे वो जानना तो जरूरी है. तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा ये इंफॉर्मेशन, मेरा टाइम प्लान करूंगी कि दिन में मुझे 2 घंटा ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोविड मुझे देखनी है, सुननी है, समझनी है, बात करनी है. नाउ आई कैन ब्रेक ईदर हाफ एन आवर मॉर्निंग एंड 2 hours in 1.5 hour in the evening, और डायरेक्टली 2 घंटा मैं सुबह ले लूं. Plan according to my convenience. I will plan this. Once it's planned, I will make sure कि वो 1.5-2 घंटा जो मैंने अब किया है उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव बोलो या जो भी मैंने कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मैं वो कर लूंगी. उसके बाद इवन बशिश भाई आप मेरे पास आ जाएंगे और मुझे कोई अच्छी सी कोविड की नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे वैक्सीनेशन की, तो सॉरी बशिश भाई आज का टाइम आउट हो गया, हम कल ये टाइम पे वी कैन टॉक. Right. So I have shifted myself from that negative zone to a positive zone. Now my entire day from 24 hours, practically we have 10 hours, sure, which is really active. बाकी तो हमारे रूटीन काम में ही निकल जाते हैं. तो वो 10 hours में 2 hours I have spared for this COVID related thing. बाकी के 8 घंटे में मेरे लिए मेरी other activities के लिए है. And again my efficiency will increase if I'm doing it particularly timed out है, तो उसमें मुझे बीच में कोई hindrance या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. I can focus on what I'm doing right now. So these are few tips which can really work. Affirmations हैं, which I'm sure everyone is very well aware of it. So we can frame affirmations and keep on reciting and doing that. That also helps. So Deepal, just to summarize, आपने जो 2 बहुत powerful ideas दिए, in fact 3, एक तो gratitude, कि इंसान अगर देखता है अपनी जिंदगी में तो शायद उसके पास जो है वो कभी इनफ नहीं हो सकता, या तो अगर वो पॉजिटिव देखता है तो जो है उसमें वो हैप्पी रहे कि ही कैन स्टिल बी एम्बिशियस. मैं वो कैटेगरी में मानता हूं अपने आप को कि मुझे बहुत कुछ चाहिए लेकिन जितना है उसके लिए ईश्वर धन्यवाद, आई वांट टू एंजॉय लाइफ इन अ बैलेंस वे.
जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो सबको यही रेकमेंड करते हैं, वल्लभ भंसाली जी से लेके अशोक शाह वीट्रांस, मोतीलाल जी, एवरीवन हैव अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। आई थिंक ये फैंटास्टिक है। सेकेंड, आपका जो आइडिया था कि आप एक दिन अलॉट करें, उसके साथ में एक ट्वीक में सजेस्ट करूंगा, शायद कभी कभी वो प्रैक्टिकल नहीं, जैसे मेरे फील्ड में कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, बट यू फॉलो सैंडविच पॉलिसी, जो ब्रह्म कुमारी की शिवानी बेन भी काइंड ऑफ रिकमेंड करते हैं, दैट यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट। कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में आप न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप या सोशल मीडिया मत ड्रॉ करो, ओपन योर ग्रेटिट्यूड जर्नल और ओपन योर गोल प्लानर, या स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट, योर अफर्मेशंस कि मैं एक हेल्दी पावरफुल सोल हूँ, मैं समाज के लिए बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ परमात्मा का। स्टार्ट विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन। फिर पूरे दिन में आप दिनचर्या करो जहाँ पे आपके पास नेगेटिव, फैक्टफुल, व्यर्थ सब आता है, एंड अगेन एंड योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट कि हे ईश्वर, ग्रेटिट्यूड, ये दिन जो भी था अच्छा था, मुझे हेल्दी रखने के लिए, मेरे परिवार को सेफ रखने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए थैंक यू। सो व्हेन यू स्टार्ट योर एंड योर डे पॉजिटिव, और बीच में वो नेगेटिव होता है तो भी सैंडविच करके हम उसे खा सकते हैं, तो दैट इज वन वेरी वेरी गुड सजेशन। तो आई लव योर थॉट, ये ग्रेटिट्यूड जर्नल का और डे का। देयर कपल ऑफ पीपल हुम आई वांट टू एक्नॉलेज। एक Kashish, तो है, here I will हाँ tell you some. I'll प्लीज just interrupt प्लीज you प्लीज 1 प्लीज, minute. हाँ बोले ना। हाँ, so as you said ना कि सैंडविच करना, तो मुझे हाँ just I had read somewhere and it just came imprompt in my mind. As you said कि morning, हमारे पास सबके पास मोबाइल है आज, right? right, Everyone, like without mobile we cannot live. अभी ऐसे हो गया है पूरा। yes, तो या तो पहले कैसे था कि हम एक बार मोबाइल चार्ज कर ले तो पूरा दिन शायद चल जाता था हमारा, राइट? right, अभी आज हम क्या करते हैं, मोबाइल में सारी चीजें करते हैं। वी शॉप ऑन मोबाइल, वी टॉक ऑन मोबाइल, वी वॉच मूवीज ऑन मोबाइल, वी बुक टिकट्स ऑन मोबाइल, ट्रैवल लो, आप जो भी ऑल पॉसिबल थिंग्स इज बीइंग डन इन मोबाइल। तो मोबाइल की एक्टिविटी बढ़ गई है, द मोबाइल यूजेज इज इंक्रीज। सो आज एक बार चार्ज करने से बदले हमें 2-3 बार दिन में शायद करना पड़ता है। सो यू हैव टू चार्ज मोबाइल मॉर्निंग और नाइट। यूजुअली ऐसे होता है कि सुबह हम चार्ज कर लो या रात को, ट्वाइस तो मिनिमम करना पड़ता है हमें चार्ज। सिमिलरली एज यू सेड कि वी हैव टू चार्ज आवरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी, विद ग्रेटिट्यूड। आपने जो 2 टाइम दिन में बताया, तो ट्वाइस थ्राइस, बिकॉज हमारी मल्टीटास्किंग हो गई है अभी। इनिशियली वी वर ओनली डूइंग लिटिल बिट, थोड़ा सा ही, इतना सारे काम नहीं था। अभी वी आर मल्टीटास्किंग, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, एंड द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट। सो वो जो चार्जिंग, जो पॉजिटिविटी, एज यू सेड, दैट इज रियली रिक्वायर्ड टू डू मोर। दिस आई वांट and टू शेयर। एंड या ब्रिलियंट, वेरी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। इसलिए शायद जापानीज ज़ेन में वो लोग बोलते हैं कि दिन में 4 बार आप मेडिटेट करो। कोई कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कंसेप्ट और ट्रैफिक कंट्रोल के दिन में 3-4 बार होता है। शायद मुस्लिम्स में शायद इसीलिए नमाज हम दिन में 5 बार वो लोग रिकमेंड करते हैं कि यू रीसेट योरसेल्फ, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड एंड यू डू इट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है कि जैसे हमारी एनर्जी जा रही है, आवर माइंड, आवर सोल इज गेटिंग डिस्चार्ज दिन में 3-4 बार। आई थिंक ये बहुत बड़ा टेक अवे आपने दिया है। अब बहुत और I सुंदर read क्वेश्चन। this also, Barshish हाँ bhai, somewhere regarding meditation, as you mentioned. So I read जी, this. Every day meditate for 20 minutes, हाँ helps you for the entire day. राइट, Hmm? राइट, Every day meditation for 20 minutes helps you for the entire day. And हम्म, then further next line says, if you are busy, then you do meditation for 1 hour daily. परफेक्ट, परफेक्ट, इट मेक सेंस बिकॉज ऐसे बोलते हैं So ना, if इफ यू you are हैव टू। busy, you do meditation for 1 hour daily. Yeah, वी yeah. हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चाइल्ड, एक 11-12 साल का लड़का है। वो बोलता है कि आज लॉकडाउन में पूरा दिन घर में बैठ बैठ के, जैसे शाह, पूरा दिन घर पे बैठ बैठ के हम फ्रस्ट्रेट हो गए। हाउ डू आई रिमूव दिस फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस? सो फॉर किड्स 2 क्वेश्चंस दीपल बिन। एक तो किड्स है जो घर पे बैठे बैठे हैं, उनको वो फिजिकल एक्टिविटी, सोशल बॉन्डिंग नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, पार्क्स बंद है, मॉल्स बंद है, तो वो किड्स के लिए आप क्या सजेशन करेंगे दीपल? हाँ, so definitely आजकल kids are facing the most challenge, you know, क्योंकि suddenly they are out, I mean they're inside, they cannot go out and meet people, friends especially, where their bonding is there. मम्मी पापा के साथ कितना, how much, you know, that age gap comes, how much they can bond, what they can do. यहाँ पे basically parents का role भी ज्यादा आता है, where they can plan activities related to kids, बच्चों की तरह। जैसे इनिशियली आई टोल्ड यू कि वी कैन डू
प्ले पासिंग द पार्सल, डमशिरा, जो छोटे घर में भी हम बैठ के खेल सकते हैं, अंताक्षरी है या समथिंग लाइक दैट वेयर दे कैन वेंट आउट प्ले, फैमिली टाइम, वो सब हो सकता है. दूसरा फॉर द किड्स 11 years 12 years के लिए they can start playing somewhere within the space in the house where they can do some skipping. हम लोग जो पहले छोटे थे तो खेलते थे, ऑल्टरनेट स्किपिंग कर सकते हैं, कैच कैच खेल सकते हैं, नॉट विद अ बॉल बिकॉज डेफिनेटली हाउस में घर में सब चीजें आगे पीछे रहती है, तो वो पहले आपको वशिष्ठ भाई याद हो तो हम वो टॉवल और उसके छोटे वो सॉफ्ट बॉल्स बना के वी यूज्ड टू प्ले दैट. तो समथिंग फन, क्रिएटिव टाइम, म्यूजिक टाइम, एज इन म्यूजिक लगाओ और उसके साथ यू कैन पेंट, एंड व्हेन म्यूजिक स्टॉप्स यू स्टॉप योर पेंटिंग एज अ फैमिली. So there are a lot of things where the stress can be relieved and things can be taken care. Perfect. Definitely talking with friends and all तो है ही, with phone, on phone and things like that, yeah. मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा. आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट चांस फॉर किड्स टू बी मोर मैच्योर. जैसे स्टार्ट विद अ सिंपल थिंग कि भाई आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए बेटा, दिस आर टफ टाइम्स, शायद घर पे हेल्प नहीं आ रहा है या हमें हेल्प नहीं रखने फॉर बजट इश्यूज या व्हाटएवर, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, बिकॉज वो फिजिकल एक्टिविटी भी किड्स लव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिस दिन आप बच्चे को आप एक एडल्ट जैसे बात करोगे ना कि बेटा एटलीस्ट डू योर ओन बेड, घर में एक बार तू झाड़ू मार ले, दे विल एंजॉय दैट रोल. मेरी 3 साल की बेटी है, शी इज एक्साइटेड टू डू फर्नीचर. आई मीन उसे मजा आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीजें पापा आई क्लीन माई रूम. तो वो जो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग फेज. एंड टू ऑल द किड्स आउट देयर एंड एवरीवन आउट देयर, मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा. वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी विल एड्रेस मोस्ट ऑफ देम. कि गर्म पानी है विच इज इक्विवेलेंट टू टफ टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, और 3 ऑब्जेक्ट्स है. एक है आलू, एक है अंडा और एक है कॉफी. वो ही गर्म पानी है, लेकिन जब आलू गर्म पानी में जाता है तो आलू एकदम सॉगी सॉफ्ट बन जाता है. विच मीन्स दैट सम पीपल आर वेरी टफ. जब सब अच्छा होता है तो लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे टफ टाइम्स आ जाते हैं वो एकदम खोखले हो जाते हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं. सेकेंड इज अंडा. अंडा कैसे होता है कि एकदम ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे हम गर्म पानी में डालते हैं वो कड़क हो जाता है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे टफ टाइम हो जाते हैं तो एकदम एकदम कड़क हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, बट इमोशनली हिल जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू शेयर विद एनीवन. वो एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, फाइट करते हैं. लेकिन द बेस्ट इज कॉफी. जैसे गर्म टफ टाइम आता है, गर्म पानी में डालते हैं तो वो अपना एक्चुअल कैरेक्टर, अपनी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना अरोमा, अपना फ्लेवर पानी में छोड़ता है, एंड इट एंजॉय. सो बी लाइक कॉफी. दिस इज द टाइम. मैं हमेशा मानता हूं कि टफ टाइम्स एक्चुअली हेल्प्स अस फाइंड डायमंड्स फ्रॉम स्टोन्स. हीरो को पत्थर में से चुनने का ये सबसे बेस्ट तरीका है. ये टफ टाइम्स में एक्सक्यूज देना बहुत इजी है, लेकिन काफी लोग हैं जो बुक्स पढ़ सकते हैं, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, घर में हेल्प कर सकते हैं. काफी बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है, एक हॉबी किया है, लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, ऑनलाइन एनजीओ में हेल्प कर रहे हैं. एक मेरे को मालूम है साड़ाव का एक लड़का है, शायद राहुल नाम है उसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फुल नेम. उसने तो इन लॉकडाउन अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मास्क का और सबका, एंड ही डिड अ गुड जॉब. काफी लोग हैं जिन्होंने एनजीओ को लोगों को हेल्प किया. और इसमें आई वुड सजेस्ट कि खास करके छोटे बच्चे हैं, इफ दे आर पार्ट ऑफ एन एनजीओ, उनमें जो स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो इमोशनल वैल्यूज आएंगी वो सबसे बेस्ट रहेगा. तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. दीपल, when 2 questions are there, but before I take 2 questions, एक और एक क्वेश्चन आया था कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है. सो मैं बिजनेस के फ्लक्चुएशन के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए क्या कर सकता हूँ? सैलरी देना है, रेंट देना है, बैंक का ईएमआई है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं है. तो एनी टिप्स ऑन दैट दीपल में? यस, ये जो बिजनेस के फ्लक्चुएशंस हैं, देना है तो सामने जिसे हमें देनी है, लेट्स हैव अ कम्युनिकेशन, शेयर की व्हाट इज द सिनेरियो. तो वो लोग भी हमें गाइडेंस देंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फील्ड. डेफिनेटली लुकिंग एट देयर IQ लेवल्स और क्या है, हाउ द कलीग या योर टीम मेंबर्स और मे बी पीपल जिसे सैलरी देना है, हाउ कंपैटिबल दे आर. तो sharing there will be a platform where you can expect some discussions, some tips or some ways where they can help you how to take it further. Secondly, इसमें हमें alternatives, as you said, कि how to grow and take another alternative, parallel things. अभी मेरी ये business है which is not working because of lockdown. This business is almost shut down kind of a thing. अभी 20% mode of working में हो गया because of lockdown. The system is such, हमारी जो industry है which cannot work online. It needs to be worked offline. So what is there right now that I can do? मेरी ये skill set है, मेरे ये
स्ट्रेंथ है, तो उसको मैं कैसे एडवांटेज में लेके आई कैन ग्रो एंड डू समवेयर वेयर द माय फैमिली और माय थिंग्स आर सपोर्टेड एंड माय बिजनेस इज आल्सो बीइंग टेकन केयर, क्योंकि ये टेम्पररी है बशिश भाई, इट्स नॉट परमानेंट। ये जो भी है 1 साल या वॉट एवर एक्स अमाउंट ऑफ मंथ्स और ईयर्स जो है वहां पे वी हैव टू सस्टेन, तो ये तो कुछ बंद तो होने वाला नहीं है, तो उसको वहां पे पॉजिटिवली रख के if we think in that way our mental stress would be relieved, you know, कि there is something basically we occupy, कैसे हम बोलते हैं किधर attachment detach होना हो हमें कोई चीज से, spiritually we say कि you have detachment from your desires or मोह माया या वगैरह उसमें से, तो जब भी वो detachment चाहिए तो you have to anchor yourself or attach yourself to something else. So similarly when we have a shift or we do something else, तो हमारा वो जो माइंड है विल बी ऑक्यूपाइड, तो वो जो स्ट्रेस या नेगेटिव मेंटल हेल्थ है दैट विल बी टेकन केयर। सेकेंडली एज वी मेंशन बिफोर की स्पिरिचुअलिटी है, टॉकिंग विद फैमिली मेंबर्स, कम्युनिकेटिंग विद पीपल अराउंड योर मेंटर्स, इफ यू हैव लाइक looking and studying, growing yourself, if you have that liberty with finances and things कि चलो थोड़ा टाइम है we can manage, तो फिर take that, use that liberty in a right way, grow yourself with whatever learnings you really want to develop, your hobby which you wanted to do और आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, so ये सारी चीजें can be done. Yes, और मैं एक ऐड करूंगा खास करके बिजनेस स्फीयर में दीपल बेन, ये समय में जिस लोगों ने अपने फंडामेंटल्स को अच्छा रखा है, पास्ट में अपना रेप्यूटेशन अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, क्रेडिबिलिटी अच्छा है, दीज पीपल विल सपोर्ट ब्लाइंडली कि आप बस में, मुझे मालूम है आपका कभी भी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ, आप अच्छे इंसान है, अभी तकलीफ है, हम आपके साथ खड़े, रेंट 6 महीने बाद देना। ओके, जिसका फंडामेंटल्स बहुत क्लियर था कि भाई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, ज्यादा ओवरहेड्स नहीं है, वो बहुत हैप्पी स्पेस में। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में सक्सेस को ईगो में, एरोगेंस में कन्वर्ट कर लिया, जिन्होंने अपना व्यवहार, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन पोलाइट नहीं रखा, जिन पे लोगों का कम भरोसा है, दे आर गोइंग टू सफर, बिकॉज उन्होंने बोला कि पास्ट में भी आपने हमें पेमेंट नहीं दिया तो अब आप क्या दोगे। सो ये हमें एक सबक सिखाता कि स्टे ट्रू टू योर फंडामेंटल्स एंड वैल्यूज। टफ टाइम में जिसका भी वैल्यूज अच्छा है, जिसका रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी अच्छा है, उसको लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके एम्प्लॉयज, वेंडर्स सबने सपोर्ट किया है। और हमने देखा कि जिस लोग खास करके भले वो रिच हो, सक्सेसफुल, लेकिन जो बहुत एरोगेंट है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं था, उनको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। वैभव खानदार इज ऑल्सो शेयरिंग कपल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। बीजापुर से एक निखिल करके है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरे अंदर कांस्टेंट डर ही नेगेटिविटी है, उसको मैं पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करूं। मेरे को दिन रात वो फियर ही आता है, रात को नींद नहीं आता। हाउ डू आई कन्वर्ट माय नेगेटिव सेल्फ इनटू अ पॉजिटिव बीइंग? सो दीपल मैन, इफ यू वांट टू आंसर। Yeah. So fear is one thing which is in, you know, we attract towards it. जितना हम negative सोचेंगे ना, उतना हमें fear आता रहेगा। तो one form, main thing what I would suggest is have faith. Instead of fear, shift yourself towards faith. Have something where you can, through affirmations, look for something bright side. जैसे हम आपको जस्ट एन एग्जांपल बशिश भाई, इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी कि हम कोई भी एक रूम में एंटर करेंगे, इफ यू एंटर अ रूम you will see everything, the first thing that will attract us is the thing that is not kept properly. थोड़ा सा वो disorganized है, सारी चीजें बराबर रखी है, all the books are kept nicely, but एक बुक जो बराबर नहीं रखी होगी ना, our attention goes there, so our energy also we pass there. तो वाइटेस में pass our energy to something that is positive, तो वो shift लाना बहुत जरूरी है। बट हाँ, सब लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव हो, लेकिन कैसे? टुडे सिनेरियो इट इज नॉट इजी, कि सारी स्टिम्युली हमें जो आती है वो सब नेगेटिव ही आती रहती है, तो हाउ कैन आई डू? नींद नहीं आती है, इट्स अनदर थिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन, वी डेफिनेटली हैव टू कीप अ चेक ऑन आवर थॉट्स, तो बी विद पीपल हु आर पॉजिटिव, लाइक माइंडेड। जैसे हम बोले ना, हम जहाँ रहते हैं वैसे हो जाते हैं, जो कल्चर में या जो देश में रहते हैं, slowly and steadily we tend to adapt the accent, the way of behavior, the food, everything. So try to be in a community with people who are positive, who are looking forward in this bad times, a good thing, you know. Come to join some community जहाँ पे ये सारी चीजें हैं। Keep a check on your diet, healthy, basically exercise and diet will help you to have a good sleep as well. So physical health, if is taken care, mental health also will be
taken care simultaneously. Yeah. So आपने जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली नेगेटिव में हूँ, मेरा मानना है कि अगर बाल्टी में गंदा पानी है और आपके पास उतना हिम्मत नहीं कि आप पानी पूरा निकाल दो, आप बाल्टी को नल के नीचे रख दो। आप जैसे बाल्टी को नल के नीचे रखोगे, क्या होगा, वो गंदा पानी आएगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, पानी क्लीन हो जाएगा। दैट इज अस। आज हमारे अंदर इतना फियर है, नेगेटिविटी है। यू बी इन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव अफर्मेशन, यू बी इन कॉन्स्टेंट मेडिटेशन, लोगों को हेल्प करो, अच्छे सर्कल में रहो। जितना पॉजिटिविटी में रहोगे उतना आप उसमें ओवरकम कर पाओगे। सेकेंड थिंग, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि समझो आपके पास कुछ भी रिसोर्ट आपको दिखता नहीं है, रास्ता दिखता नहीं है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अपने को ऊपर वाला याद आता है। सो बिकम लाइक द्रौपदी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एट दैट टाइम शी वाज लाइक कृष्ण भगवान मुझे बचाओ, एंड शी वाज आल्सो ट्राइंग टू होल्ड। वो अपनी इज्जत बचाने को ट्राई कर रही थी, लेकिन उसमें उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। सामने जो थे दुर्योधन और वो लोग, उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ था। वो लोग खींचते गए, खींचते गए। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया जो द्रौपदी ने कहा कि अभी मेरी इज्जत आपके हवाले, आई गिव अप, आई सरेंडर। हे भगवान, आपको मेरे साथ जो करना है छूटे, मैं आपके शरणों में आई सरेंडर। और जब वो सरेंडर होती है तब कॉन्स्टेंटली वो नेवर एंडिंग दुपट्टा होता है। सो मेरे हिसाब से ये यूनिवर्स का एक इशारा है कि अभी भी टाइम है। वैल्यूज को लाइफ में इंप्लीमेंट करो, स्पिरिचुअलिटी को रखो, यू विल गेट द राइट। भले टफ लाइफ रहेगा बट आप बाहर निकल जाओगे। सो आई थिंक, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। लास्ट टू क्वेश्चंस एंड बिफोर वी विल टेक ऑडियंस, आई थिंक वी हैव गॉट गुड रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। एक जो क्वेश्चन आया है वो बहुत सिंपल है हाउसवाइफ्स के लिए, कि वी आर फीलिंग हेल्पलेस, घर का पूरा काम करना है, काम वाली बाई नहीं आती है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहा है, बच्चे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, हम कैसे हमारा स्ट्रेस मैनेज करें और घर को कैसे बेटर मैनेज करें? दीपन। Yeah. So for housewife, yes, it's a very challenging situation right now. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, everyone is expecting things और सब लोग घर पे हैं तो they want more. बाहर है तो वो रूटीन में सब जगह लग जाता है, अभी घर पे है तो बैठे बैठे क्या करें, और खाना चाहिए और थिंग्स, यू नो, एक्सपेक्टेशंस। अभी ध्यान जाता है हस्बैंड का कि ये साफ नहीं हुआ है, कि ये चीज है। पहले तो वो रूटीन में अपने ऑफिस में चले जाते थे तो अपने हिसाब से काम होता था। तो यहाँ पे दे आर फीलिंग चैलेंजिंग। तो हाउसवाइफ को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड टेल देम कि मेक द एंटायर डे इन सच अ वे कि सब पार्टिसिपेट कर सके अपने साथ, यानी मेक इट सो लाइट एंड नाइस। इन्वॉल्व एवरीवन एज यू सेड इन हाउस होल्ड कोर्स, किसी को छोटा छोटा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कैसे होगा, मुझे काम दे दिया, मैं क्या काम करूं, मैं क्यों ये करूं, नो काइंड ऑफ अ थिंग विल कम। सो एज पर योर इंटरेस्ट, योर कैपेसिटी, just assign work to everyone. That would help, you know, and work as a team. That will really help. Again, make sure and communicate ki this is my me time. दिन में ये मेरा मी टाइम है, and I would want to spend it with myself and in my way. So with their when we convey this and spend that time, they will also respect your time and will adjust everything उसके आजू बाजू, यानी वो टाइम छोड़ के सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। they'll make sure कि they don't disturb you when there is your me time. तो वो me time में do that is de-stressing for you, like it can be some of your hobbies or maybe resting, listening to music, meditation as you said, some spiritual inclination, something like that can be held. Even communicating with the friends, getting in touch, playing games with friends. आजकल तो Zoom और Yahoo और I don't know कितने सारे platforms हो गए हैं। तो a kitty party can also be, if a housewife is into kitty parties and things, they can have a Zoom kitty party as well. तो वो सारी चीजें हैं which will really help them in getting de-stressed and coping with the things. मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑल आवर व्यूअर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हाउसवाइफ इज नो लेस देन अ बिजनेस और अ बिग जॉब। हमें एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। पहले के जमाने में एक लेडी है ना, शर्म करती थी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आई एम ओनली अ होम मेकर। इट्स नॉट ओनली, आई एम अ होम मेकर। अ होम मेकर यानी ये एक इतना बड़ा रिस्पेक्ट है। जिस दिन हम हमारे मदर्स को, वाइफ को वो रिस्पेक्ट देंगे कि आप घर मैनेज कर रहे हो। शायद अगर आज हम प्रोफेशनल देखें घर मैनेज करने का, तो एनीवेयर बिटवीन 50,000 से 2 लाख रुपया भी खर्चा हो सकता है। अगर मैं एक शेफ रखूं, क्लीनर रखूं, ये रखूं, वो रखूं, तो एक माँ, एक वाइफ, एक सिस्टर
जो घर मैनेज करने में और जो उसमें वो प्रेम, वो प्योरिटी, वो संस्कार डालते हैं, दैट इज इररिप्रेसिबल. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल्स इन देयर, और ये एक टेक अवे रखो कि हाउस वाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. उसे एक डिग्निटी दो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि उनके लिए कोई रिटायरमेंट नहीं होता, उनके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता. इट इज 24/7, 365 टू लाइफ लॉन्ग. सो रिस्पेक्ट एंड लव टू ऑल द हाउस वाइफ आउट देयर, एंड स्पेशली दोस हाउस वाइफ जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं और घर मैनेज कर रहे हैं, या तो वो हाउस वाइफ ही जो पूरा दिन घर कर रहे हैं. You have our respect. It's a very, very big achievement. Last Dear question. Kashyap, I would say, I usually say it's a homemaker instead of a housewife, you know. Homemaker. So, Yes, homemaker. homemaker, this is something, it's an unpaid job. Yes. Usually in all the professions or job what we do, you get a monetary payment. Yahan pe it's a homemaker, which is, it's an unpaid job, and the work which is done, it's out of love and care. It is nothing like that she is doing out of a responsibility है, but out of a जैसे ठोक बजा के आपको करना है, ऐसे नहीं है. Yeah, this I wanted to add here. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक ये बहुत एक माइंडसेट में जरूरी है. एंड लास्ट क्वेश्चन जो 2-3 जन ने पूछा है कि दीपल बेन, बसेश भाई, आप लोग मेडिटेशन स्पिरिचुअल बोल रहे हो, गिव अस टेक्निक्स कि हम 5 मिनट 10 मिनट कैसे मेडिटेट करें, हमें कुछ नहीं आता. सो दीपल बेन, फर्स्ट इफ यू कैन गिव सम टेक्निक्स एंड देन मे बी आई कैन शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंस. Definitely. So here I'll tell Bashish bhai, I do take meditation classes or workshops. Okay. Yeah. So isme what techniques we give is, meditation is doing something where you are deeply involved and there is nothing else that is affecting you. यानी हम meditation में हो तो आजू बाजू कुछ हुआ, movement हुआ, तो वो हमें ध्यान में नहीं आता है. तो that is kind of a meditation. It is not the process, everyone follows a very different process of doing meditation, but it can be when I'm painting. Suppose I'm a painter and that's my hobby, I'm painting, I'm so much involved in it कि मुझे वो आजू बाजू कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे वो टाइम नहीं समझ में आया, मैं 2-4 घंटा उसके अंदर डीपली चली गई. So that is also a kind of meditation. Secondly, meditation can be something just 5-10 minutes करना है तो you just be साक्षी, जो हम हिंदी में बोलते कि आप आपके थॉट्स में, फीलिंग्स में, यू जस्ट सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड बी प्रेजेंट टू इट. सो माइंड को 1000 थॉट्स आते रहेंगे, 10 मिनट में तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, बट जस्ट बी प्रेजेंट, एक्नॉलेज दोस थॉट्स, लेट देम कम एंड गो. जो एक्नॉलेजमेंट भी रहेंगे ना, कि विद एन एक्सेप्टेंस, दैट विल bring you up, and slowly we'll realize कि with the practice, with a constant practice, there will be a stage where the intensity, the frequency of the thoughts will slowly diminish. But yeah, it is something where you have to sit quietly and take it, you know, as it comes. I think meditation आपको हर एक का एक तरीका है. आपको पहाड़ के ऊपर पहुंचना है, किसी को हेलीकॉप्टर से जाना है, चल के जाना है, घोड़े पे जाना है. डू वॉट एवर सूट्स यू, बट स्टार्ट डूइंग. एंड सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जितना प्योरिटी रखोगे, जितना लोगों को हेल्प करोगे, वो भी एक मेडिटेशन है, वो भी एक धर्म है, वो भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, जो हम कर्म कहते हैं. एंड अगर आपको कुछ भी नहीं आता, देन जस्ट से दिस थिंग, यू नो, जस्ट एक छोटा सा प्रेयर बोलो कि डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, ब्लेस मी, और मेरे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को आप ब्लेसिंग्स दो, उसे अच्छे हेल्प दो. आप जितना लोगों को ब्लेस करोगे वो भी एक मेडिटेशन हो जाएगा. सो स्टार्ट विथ वेरी वेरी सिंपल थिंग्स ऑफ ब्लेसिंग पीपल, कि आप ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स लो और ब्लेसिंग्स बांटो. सो विद दिस आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन. देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Dipal Bain is a professional, she's a counseling psychologist, she's a master NLP practitioner and बहुत सारे achievements है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक 1-on-1 सेशन चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, प्लीज अप्रोच हर. इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक प्रोफेशनल हेल्प. आपको गाइडेंस मिल जाएगा. हम लोग हमारा अभी वीडियो सीरीज बहुत एक्टिवली रेगुलरली स्टार्ट करेंगे. बी अ पार्ट ऑफ आवर वीडियो सीरीज. आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, वी विल ट्राई टू एंश्योर कि हम मेजर क्वेश्चंस को एड्रेस करें. एंड दीपल बेन, एनी क्लोजिंग कमेंट्स, एंड देन आई विल ट्राई टू समराइज द सेशन. सो दीपल बेन. Closingly, Bashish bhai, I'll share some one short story with you while Please. closing. There was this boy, एक छोटा बच्चा है घर में, and he had some cold, cough and throat infection जैसे. तो वो मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, and when he comes with a bottle of syrup
एंड ही वाज सो हैप्पी। सब ग्रैंड पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, सबको दिखा रहा है कि मुझे डॉक्टर ने वो पिंक कलर का स्वीट सिरप दिया है जिससे मेरी खांसी खरोच ठीक हो जाएगी। एंड ही इज रनिंग अराउंड और खेल रहा है और सबको दिखा रहा है एंड सो हैप्पी विथ इट। एक दिन हो गया, नेक्स्ट डे, थर्ड डे उसकी खांसी कॉफ सब कुछ बढ़ गया, एकदम ही ज्यादा जुकाम हो गया, ही स्टार्टेड हैविंग फीवर। तो ग्रैंड पेरेंट्स यानी जैसे दादी दादा नानी नाना जो घर पे थे, वो बोल रहे कि अरे बेटा तेरे को इतना कैसे बढ़ गया, क्या हुआ, क्यों दवाई नहीं काम आई, क्या हुआ करके। तो वो जाके मम्मी से भी बात करते कि अरे क्या हुआ, इसको क्यों काम नहीं आ रहा है। एंड मॉम वेंट एंड सॉ, तो उसने देखा कि वो जो दवाई की बोतल थी वो पूरी भरी की भरी पड़ी थी, बेटे ने तो पी ही नहीं दवाई। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि हमारे पास सब टेक्निक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है हमारे सामने, अगर हम उसे एक्शन में ले, बिहेवियर में ले, इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ठीक होने का एक चांस है। वी विल वर्क टुवर्ड्स गेटिंग बेटर। सिमिलरली अगर वो बच्चे ने दवाई पी होती तो ही वुड हैव गॉट बेटर और वो फीवर तक नहीं पहुंचता था। So I would definitely request everyone to give a try with a positive mind. Definitely looking into your circumstances, your scenario, your family constitutions, how things are. वो देख के you can definitely try. And thank you everyone, like all the audience, for being so generous and being till end listening to us. And thank you to the backend team. And definitely Bashish bhai, thank you so much. बिफोर आई समराइज सेशंस, आज हमारे पास की 7 टेक अवेज है जो मैं समराइज करूंगा, क्योंकि जैसे दीपल भाई ने कहा था, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज द की। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ समाज सेवा, एज अ सोशल सर्विस, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले ये वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए। इट इज आवर ड्यूटी कि ये वीडियो जितने लोग तक पहुंचेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक के लाइफ में अगर इसमें से एक पॉइंट भी अगर उनको क्लिक होता है, उनका लाइफ ब्यूटीफुल होता है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे प्लीज शेयर करिए। 7 पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू समराइज, जो दीपल भाई ने हमें गाइड किया था, इज फर्स्ट, फैमिली टाइम क्वालिटी आप डिफाइन करो। अगर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन को कॉम्बैट करना है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है, डिफाइन अ फैमिली टाइम। आप बोर्ड गेम्स खेले, कुछ एक्टिविटी साथ में करें और धीरे धीरे कम्युनिकेशन करें। सेकेंड, आपका सर्कल पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका सर्कल अच्छा है तो आप उनके साथ उनके जैसे बन जाएंगे, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट आपके पास आ जाएगा। थर्ड, जो बहुत सुंदर चीज दीपल मैंने कहा था, ग्रैटिट्यूड जर्नल, कि रोज कैसे भी जाए प्लीज ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भगवान, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरे माँ बाप वेल है, जो भी आपको लगता है ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए। फोर्थ पॉइंट जो दीपल मैंने कहा था, इस चार्जिंग स्लॉट्स, जो हम लोग ने सैंडविच बोला था, कि दिन में 2 या 3 बार आप अपने आप को चार्ज करिए, स्टार्ट ऑफ द डे, शायद मिड ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे। और वो टाइम पे आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी और थॉट्स और मेडिटेशन से चार्ज करो, कि आपका बैटरी, जैसे मोबाइल का बैटरी होता है वैसे आपका बैटरी भी फुल्ली चार्ज हो और आप फोकस कर सके। स्पेशली स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे हम बहुत रिकमेंड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमने बहुत अच्छे से बोला था कि हाउसवाइफ नहीं है, होम मेकर है, उसे आप रिस्पेक्ट दे, सपोर्ट करें, वो बहुत बड़ा दर्जा है होम मेकर का। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सिक्स पॉइंट जो हम लोग ने एक इंट्रोस्पेक्ट किया था, कि ये टाइम पे अगर आपको समाज सेवा करना है, हेल्प करना है, तो आप हर एक दिन 4 जन को कॉल करिए। कॉल 4 पीपल, आज दिन क्या है, कैसा है, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला साथ है, टेंशन मत ले रहे। इतना बोलने से सामने वाले का आप 50% स्ट्रेस कम कर सकते हो। आप भले हेल्प नहीं कर सकते तो दुआ दीजिए। एंड लास्ट इज, विदाउट स्पिरिचुअल पावर वी आर नथिंग। हमारा ईगो, एरोगेंस कुछ नहीं है। प्लीज हैव स्पिरिचुअल पावर, प्लीज ट्राई टू मेडिटेट एंड दुआ देते जाओ। ब्लेस पीपल, ऐसे समय में खास करके आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन बाय 5-10 सेकेंड्स मेडिटेशन। अगर आप मेरे साथ अपने मन में रिपीट कर सकते कि डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमारे सभी गुरुदेव, देवी देवता है जिसे भी हम मानते हैं, हमें प्लीज ब्लेस करें। और हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हमारे पूरे भारत देश में और बाहर भी, आप लोगों को गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग प्लीज ब्लेस करें। और मेरे दिल से हर एक आत्मा, हर एक जीवात्मा के लिए ब्लेसिंग्स निकल रही है, और मैं दुआ करता हूं कि वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और वाइस रहे। ओम शांति। With this, we end our session. Thank you so much. अपने feedback please comments में दीजिए. If you want similar such sessions, please let us know and like, comment and share this video maximum. Dipalben, thank you so much for your time. And I'll again request the audience कि guys please, आप अगर आपको कोई issues है and you want professional help,
please contact Dipalben and please be part of our video series. Thank you so much. Dipalben, Thank you, any Vishal. last words? Thank you so much. Done. So with this, we'll end our session. Please take care, guys, and be safe.